Let's begin. Good evening, everyone. A very warm welcome to today's webinar hosted by Tata Indian Institute of Skills. I'm Janvi, and I'll be your host for the session. It's wonderful to see so many of you joining today. Thank you for taking time out of your day to be here with us. Before we begin, a few quick key housekeeping notes. Your microphones are muted, so you will have to use chat box to ask any question or to have a conversation with us. We will be having a live Q&A session at the very end. However, you all can keep posting your doubts in the comment in the chat box. A feedback form and a few resourceful links will be provided in the chat box by the end of the webinar. Please ensure you fill up the feedback form so that you get your certificates. Before we begin today's session, I would like to give you all a brief about what Tata Indian Institute of Skills is all about. So we so Tata Indian Institute of Skills, we are an industry-driven skill development institution focused on preparing individuals for modern manufacturing and technology careers. So we provide practicals, hands-on training aligned with industry needs. One of the key initiatives by Tata Indian Institute of Skills is the National Skills Test. What is National Skills Test? So, National Skills Test is not your typical exam where marks are everything. We have designed NST to identify potential, aptitude, and real capabilities. It focuses on how you think, solve problems, and how ready you are to learn practical industry relevant skills. So even if you are in 10th, 12th, ITI, diploma, or just have a graduation background, every one of you can attend NST. NST, we bifurcate students based on their performance. We guide them what program is right for them according to the strengths, interest, and career goals. In simple words, if I put it out, NST is the first step towards choosing the right skill part and building a future in industry focused careers. The registrations have already begun. It is now live. The registration fees start from 99 rupees onwards. If you want to know more about NST, please go through the links I have provided in the chat box. And with that said, it's now my absolute pleasure to introduce our speaker for today, Mr. Naveen Kumar. He's an experienced CNC instructor who brings around 5+ years of experience and hands-on experience in CNC domain. He has expertise in CNC, milling, EDM, wire EDM programming, and CAD/CAM technologies. He has worked with Makino, Takata, and has an extensive industry exposure, which makes him the right person to guide aspiring engineers and technicians on the latest advancement in machining and manufacturing technologies. In this session, all of you will gain some insights into CNC operations, fundamentals, industry applications, and a few career opportunities. Mr. Naveen, the floor is yours. Welcome. All of you all can welcome our speaker in the chat box. Feel free to say hello. Okay, thank you, Janvi ma'am. Good evening to all. My name is Naveen Kumar, and I welcome you all in our today's session. Before starting this session, you just let me know in which language you all are comfortable, so we can start our session, or I can deliver my session smoothly. So Hindi and English, you can drop your answers on the chat box, so I can start the session accordingly. So let me share my screen. Okay, so before starting this session, I just want to ask from you all, like, what do you know about CNC machine? CNC machine के बारे में या CNC term के बारे में आप लोग क्या जानते हो? So you can drop your answers on the chat box. तो कोई जानता है CNC के बारे में? CNC किसी ने अगर सुना हो तो वो अपना आंसर चैट बॉक्स में बता सकता है. Okay, Lavkush is saying computer numeric control. Amrit is saying computer numeric control. Anup is saying which we control through the computer. So, okay. So, CNC is basically computer numeric control. Okay, so what is computer numeric? So, the machine
ठीक है, ऐसी मशीन जिसकी हम मूवमेंट और फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। ठीक है, जिसकी जितनी भी मूवमेंट होगी, जितने भी फंक्शन होंगे, वो सारे हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम और कोड, उसको हम सीएनसी मशीन बोलते हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल और यू कैन से कंप्यूटर जनरेटेड अल्फा न्यूमेरिक कंट्रोल। सो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है कि जो भी कोड आपके पास हम जनरेट करेंगे या सीएनसी मशीन को जिन भी कोडों के साथ रन करेंगे, उनमें अल्फा प्लस न्यूमेरिक मींस अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों टर्म्स रहती हैं। ठीक है, तो अगर आपको मशीन का कोई भी फंक्शन ऑन करना है, ऑफ करना है या मशीन की एक्सिस को मूव करना है, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे आपके अल्फा, और पोजीशन किस पोजीशन पे जाना है, कितना डिस्टेंस आपको मूव करना है, उस टर्म को आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स मींस आपके पास नंबर 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास पहले भी सीएनसी से पहले भी हमारे पास मशीनें थी, तो हमको सीएनसी में अपग्रेड करने की क्या जरूरत पड़ी? कोई बता सकता है अपना आंसर कि हम सीएनसी की तरफ क्यों अपग्रेड हुए, सीएनसी को लाने की क्या जरूरत पड़ी? बिकॉज मशीनें तो हमारे पास पहले भी थी, जिनको हम कन्वेंशनल मशीन्स बोलते हैं। सो हमको सीएनसी की तरफ ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत क्या पड़ी? मतलब कुछ इज सेइंग रिपीटेबिलिटी, एक्यूरेसी। ओके, ठीक है, तो अभी इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मेरे को अपने हाथ से मैनुअली अगर मेरे को 10 सर्कल ड्रॉ करने होंगे, तो क्या मैं 10 के 10 सर्कल्स एग्जैक्ट सेम शेप के और सेम डायमेंशन के ड्रॉ कर पाऊंगा? हाथ अगर मेरे को अपने हाथ से मैनुअली नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज जो मेरे हाथ की एक्यूरेसी है वो इतनी एक्यूरेट नहीं है। बट वही 10 सर्कल्स अगर मैं कंपास के थ्रू एक फिक्स डायमीटर पे कंपास को सेट करके अगर मैं 10 सर्कल लगाता हूं, तो क्या उन सबके डायमेंशंस और सबका शेप और साइज मेरे को सेम मिलेगा? आप अपना आंसर चैट बॉक्स में बता सकते हो। अगर वही सर्कल को मैं विद द हेल्प ऑफ कंपास के साथ ड्रॉ करता हूं, यस, कंपास विल ब्रिंग एग्जैक्टली सेम सर्कल साइज। सो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो हमारे पास सर्कल का डायमीटर था, उसको हमने कंट्रोल कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो कंपास के साथ हमने उस सर्कल के डायमीटर को या डायमेंशन को कंट्रोल कर लिया, तो इसीलिए हमको एग्जैक्ट हमारे पास डायमेंशन का सर्कल मिला। तो सेम चीज होती है सीएनसी मशीन के साथ। तो जब हम सीएनसी की बात करते हैं, तो सीएनसी की जितने भी आपके पास फीचर्स है, फंक्शंस है, प्रोग्रामिंग है, मूवमेंट है, उसको हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम। सो वहां पे आपके पास जो मैनुअल इंटरफेरेंस रहता है, ह्यूमन का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो बहुत कम हो जाता है। अगर हम पीछे कन्वेंशनल मशीन की तरफ जाएं, तो वहां पे हमको जो मशीन की एक्सिस को मूव करना रहता था, वो विद द हेल्प ऑफ हैंड व्हील करना रहता था। तो ह्यूमन के जो हाथ की मूवमेंट है, वो उतनी एक्यूरेट नहीं होती है, तो जिसके कारण जो है हमारा जो प्रोडक्ट है, उसमें हम रिपीटेबिलिटी नहीं अचीव कर सकते, एक्यूरेसी नहीं अचीव कर सकते। ठीक है, तो उस चीज को और ह्यूमन एरर को निग्लेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, हम सीएनसी मशीन की तरफ ट्रांसफॉर्म हुए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सीएनसी, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। बिकॉज सीएनसी पे हम जो भी काम करते हैं या जो भी काम करेंगे, वो हमको एक्यूरेट मिलेगा, प्रिसाइज मिलेगा, और उसकी रिपीटेबिलिटी हमेशा सेम रहेगी। तो सीएनसी मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होती है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम। और सीएनसी मशीन बेसिकली यूज कहाँ होती है? तो सीएनसी मशीन का मेजर जो यूज है हमारे पास, वो मेटल कटिंग में है। तो सीएनसी मशीन ज्यादातर मेटल कटिंग में यूज होती है। जैसा कि आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन में लास्ट लाइन में, वेरियस materials कैन बी कट विद द सीएनसी मशीन इंक्लूडिंग मेटल, वुड, कंपोजिट्स, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, स्टील और फोम। ठीक है, तो ये सारे जो है हम मटेरियल काट सकते हैं सीएनसी मशीन से एक्यूरेटली, प्रिसाइजली, और रिपीटेबिलिटी भी हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें किसी को कोई डाउट हो, तो अपने जो क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में जो मैं शेयर करने जा रहा हूं, उसमें आप लोग देखोगे एक्चुअली सीएनसी मशीन दिखती कैसी है, सीएनसी मशीन काम कैसे करती है। ठीक है, तो
ओके, सो अभी कोई मेरे को बता सकता है कि इस वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया? लाइक आपको क्या क्या इस वीडियो में ऑब्जर्व करने को मिला? आप अपने आंसर चैट बॉक्स में डाल सकते हो कि आपने इस वीडियो में क्या क्या देखा। प्रिसाइज मूवमेंट ऑफ एक्सिस, मेडिकल इक्विपमेंट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, ओके, मल्टीपल टूल्स। ठीक है, तो ये जो हैं, जो अभी आप लोग बता रहे हो, जो आपने ऑब्जर्व किया इस वीडियो में, ये सब क्या है? सीएनसी के कंपोनेंट है। तो सीएनसी मशीन पे काम करने के लिए आपको ये नहीं है कि आपको सीएनसी मशीन ही चाहिए, उसके लिए आपको कुछ और भी उसके कंपोनेंट चाहिए रहते हैं, जैसे कटिंग टूल हो गया, होल्डर हो गया, फिक्सचर हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ एक सीएनसी मशीन के एसेंशियल पार्ट्स हैं जो आपको मशीनिंग करने के लिए चाहिए रहते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन, बिकॉज एक मशीन जो है वो सारे काम नहीं कर सकती है, तो उसके लिए क्या है, हमको सीएनसी मशीन को कैटेगराइज करना पड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। ठीक है, तो सबसे पहले जो सीएनसी मशीन का जो टाइप आता है वो है सीएनसी टर्निंग। ठीक है, तो टर्निंग जो हमारे पास मशीन है वो बेसिकली सिलिंड्रिकल पार्ट्स को मशीन करने के काम आती है। इसमें आपके पास क्या रहता है, जो आपके पास वर्क पीस रहता है जिसको हमको कट करना रहता है, वो रोटेट करता है, और जो टूल जो आपके पास मटेरियल को रिमूव करता है वो स्टेशनरी रहता है। तो जो हमारे पास टर्निंग जो मशीन रहता है बेसिकली उसका मेजर जो रोल है वो आपके पास सिलिंड्रिकल पार्ट्स जहाँ पे हमको मशीन करने रहते हैं वहां पे आता है। नेक्स्ट हमारे पास है सीएनसी मिलिंग। सो सीएनसी मिलिंग मशीन में अगर आप देखेंगे तो वो टर्निंग मशीन का बिल्कुल अपोजिट है। जैसा मैंने आपको बताया कि टर्निंग मशीन में आपके पास आपका जो वर्क पीस है वो रोटेट करेगा और आपका टूल स्टेशनरी रहेगा। सो मिलिंग मशीन में उसका अपोजिट रहता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा कि जो टूल था वो स्पिंडल में रोटेट कर रहा था और मटेरियल को रिमूव कर रहा था। तो जो मिलिंग मशीन हमारे पास रहता है उसमें आपके पास जो वर्क पीस रहता है या जो जॉब रहता है या रॉ मटेरियल रहता है वो स्टेशनरी रहता है आपके बेड के ऊपर, और आपके पास जो कटिंग टूल रहता है वो स्पिंडल में रोटेट करता है और उसकी मदद से हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन। तो सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन कहाँ पे काम आती है? तो बेसिकली जो सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन के कंपोनेंट जो रहते हैं या जो स्ट्रक्चर रहता है, इसमें क्या रहता है, हमारे पास एक रोटेटिंग व्हील रहता है जो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव करता है। और ये जो मशीन है हमारे पास बेसिकली सरफेस फिनिश को बढ़ाने के लिए या सरफेस फिनिश को अचीव करने के लिए काम आती है, जहां पे हमको बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव करना रहता है और हमको अच्छी सरफेस फिनिश के साथ अच्छी सरफेस फिनिश को अचीव करना रहता है। तो वहां पे हमारे पास सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन यूज होती है। तो इन मशीनों की वर्किंग कैसे होती है, ये कैसे काम करती है, वो भी हम आगे देखेंगे इस स्लाइड के बाद। ठीक है, देन वी हैव लेजर सीएनसी लेजर कटिंग मशीन। तो ये जो मशीन है इसका जो मेजर रोल है वो सीट मेटल इंडस्ट्रीज में है, जहां पे हमको थिन सीट्स को काटना रहता है, तो वहां पर ये मशीन यूज होती है। इसमें हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेजर हम मटेरियल को कट करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है सीएनसी प्लाज्मा कटिंग। तो सीएनसी प्लाज्मा कटिंग में हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास ये मशीन भी सीट मेटल में ज्यादा काम आती है, जहां पे थिकनेस जो हमारे पास सीट का जो थिकनेस रहता है वो ज्यादा रहता है, तो वहां पर ये वाला मशीन काम आता है। इसमें क्या होता है, हॉट प्लाज्मा के थ्रू हम मटेरियल को कट करते हैं। ठीक है, हमारे पास एचएमसी आ जाता है, हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर। ठीक है, बीएमसी हमने पहले डिस्कस कर लिया, वर्टिकल मिलिंग सेंटर। तो हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर में क्या रहता है आपके पास, हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर में आपका जो मशीन का जो स्पिंडल है जिसमें आपके पास टूल माउंट रहता है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रहता है, जिसके कारण आप सिंगल सेटअप में मल्टी फेज पे काम कर सकते हो। तो जहां पे आपको सिंगल सेटअप पे मल्टी फेज पे काम करना है वहां पे आप एचएमसी मशीन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है सीएनसी ईडीएम, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। सो ये जो मशीनिंग रहती है, ये जो मेटल रिमूविंग प्रोसेस है इस मशीन में, उसमें क्या है आपके पास ये नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड में आता है। तो जैसा कि आपके पास मिलिंग में हमारे पास क्या रहता है, कटिंग टूल रहता है, रॉ मटेरियल रहता है, तो दोनों फिजिकल कांटेक्ट में आके मैकेनिकल फोर्स या शियर फोर्स की हेल्प से मटेरियल रिमूव करते हैं। बट इसमें हम
थर्मल एनर्जी का यूज करके मटेरियल को रिमूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट किया जाता है जो मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है, और वो जो स्पार्क का टेम्परेचर रहता है वो नियर 8000 डिग्री सेल्सियस से 12000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो मटेरियल को रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सीएनसी राउटर। सो सीएनसी राउटर जो है हमारे पास जो है वो आपके पास ज्यादातर सॉफ्ट मटेरियल को कट करने के काम आता है, जैसे वुड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, तो जहां पे आपको हार्ड मटेरियल पे काम नहीं करना है, सॉफ्ट मटेरियल काटने हैं, लाइट वर्क करना है, वहां पे आप सीएनसी राउटर का यूज कर सकते हो। उसके बाद सीएनसी मल्टी एक्सिस। अभी सीएनसी मल्टी एक्सिस में क्या है, अगर आपको किसी जॉब को किसी भी एंगल पे मशीनिंग करना है तो उस टाइम पे हमको क्या है, मल्टी एक्सिस पे जाना पड़ेगा, मल्टी एक्सिस मशीन पे जाना पड़ेगा। बिकॉज एचएमसी में आप हॉरिजेंटली मशीनिंग कर सकते हो, बीएमसी पे आप वर्टिकली मशीनिंग कर सकते हो, बट अगर आपको एट अ सर्टेन एंगल किसी एंगल पे मशीनिंग करना है तो आपको जाना पड़ेगा मल्टी एक्सिस के ऊपर। ठीक है, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एक्सिस रहते हैं, एक्स वाई जेड, ए एक्सिस, बी एक्सिस, सी एक्सिस। ठीक है, दो एक्स के अलॉन्ग जो एक्सिस एंगल पे टिल्ट हो जाती है उसको हम ए एक्सिस बोलते हैं। वाई के अलॉन्ग जो एक्सिस एंगल पे टिल्ट होती है उसको हम बी एक्सिस बोलते हैं, और जो जेड के अलॉन्ग रोटेट करती है उसको हम सी एक्सिस बोलते हैं। तो जब आपको किसी एंगल पे मशीनिंग करना है देन यू हैव टू गो विद मल्टी एक्सिस मशीन। और लास्ट हमारे पास है सीएनसी वाटर जेट मशीन। तो ये वाला मशीन भी ज्यादातर शीट मेटल के ऊपर काम करने के काम आता है। तो इसमें हमारे पास क्या रहता है, हाई प्रेशराइज्ड वाटर रहता है जिसमें अब्रेसिव मटेरियल मिलाया होता है या अब्रेसिव मटेरियल डाला होता है। तो क्या होता है, जब वो हाई प्रेशराइज्ड मटेरियल आपके पास आपकी जॉब के ऊपर स्ट्राइक करता है तो वो मटेरियल को कट कर देता है। तो अगर अब मैं बात करूं सीएनसी मशीन की, तो हमने टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन देख लिए। तो अभी टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन फर्दर क्लासिफाइड हैं एक्सिस के हिसाब से। तो इसमें आप देख सकते हो 2 एक्सिस और 3 एक्सिस मशीन। सो 2 एक्सिस मशीन में हमारे पास क्या जाता है, टर्निंग मशीन। तो टर्निंग मशीन में जनरली 2 एक्सिस रहती है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। और 3 एक्सिस में एक्स बाय जेड एक्सिस। और अगर अब मैं बात करूं आपके पास मल्टी एक्सिस की, तो मल्टी एक्सिस में हमारे पास आती है इंडेक्सेबल 5 एक्सिस मशीन, साइमल्टेनियस 5 एक्सिस मशीन और टर्न मिल। तो इंडेक्सिंग 5 एक्सिस मशीन और साइमल्टेनियस 5 एक्सिस मशीन में क्या डिफरेंस है। सो आपके पास इंडेक्सिंग 5 एक्सिस मशीन रहता है, उसमें जो भी आपके पास मल्टी एक्सिस है, मींस एक्स वाई जेड को छोड़कर जो भी आपके पास ऑक्सिलरी एक्सिस है वो इंडिविजुअली मूव करती है। जबकि साइमल्टेनियस में आपके पास जितनी भी आपके पास मशीन एक्सिस रहती हैं वो सारी साइमल्टेनियस आपके पास मूव करती है, ताकि आप किसी भी एंगल पे काम कर सको। और टर्न मिल में जो आपके पास प्रोसेस रहती है वो क्या रहता है, टर्निंग और मिलिंग का कॉम्बिनेशन है। उसमें आप टर्निंग ऑपरेशन भी कर सकते हो, मिलिंग ऑपरेशन भी कर सकते हो। तो अगर किसी को डाउट है सीएनसी मशीन के टाइप्स में, आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, सो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन रहते हैं वो कितने टाइप के रहते हैं, कौन कौन सी मशीन कहाँ यूज आती है। अब हम देखेंगे कि जो मैंने आपके साथ टाइप्स डिस्कस किए वो मशीन एक्चुअल में दिखती कैसी है, उसका उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, उसका स्ट्रक्चर क्या था, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टर्निंग से।
इस मशीनिंग प्रोसेस में जिस शेप और जिस डिजाइन और जिस साइज का आपके पास इलेक्ट्रोड रहता है, उसी साइज का और उसी डिजाइन के हमारे पास जो क्या है वो कैविटी या कोर हमारे पास मशीन करके हमको दे देता है। तो ये था हमारे पास ईडीएम मशीन। अभी ये हमारे पास सीएनसी राउटर।
अगर किसी भी मशीन से रिलेटेड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डाल सकते हो, और इस सेशन के एंड में हम डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो अब बारी आती है डिफरेंस की, कन्वेंशनल मशीन और सीएनसी मशीन कि जब हमारे पास कन्वेंशनल मशीन था तो हमको सीएनसी मशीन की तरफ ट्रांसफॉर्म होने की क्या जरूरत पड़ी। जैसा कि मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में ही आपसे डिस्कस कर लिया था कि क्या होता है कि कन्वेंशनल मशीन इज टोटली मैनुअल ऑपरेटेड। इसमें क्या रहता है कि जितना भी आपके पास ऑपरेशंस होंगे, जो भी काम होगा वो मैनुअली होगा। बट सीएनसी मशीन में हम क्या करते हैं, जॉब सेटअप को मैनुअली करते हैं, बाकी जितने भी ऑपरेशन रहते हैं, जितनी भी मशीन की मूवमेंट रहती है, वो हमारे पास कैसे रहती है, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम। तो जब हमारे पास ऑलरेडी कन्वेंशनल मशीन था तो व्हाई वी ट्रांसफॉर्म टुवर्ड्स द सीएनसी मशीन, तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस थे जो हमको सीएनसी मशीन की तरफ ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। तो सबसे पहले कन्वेंशनल मशीन में आप देखोगे ऑपरेटेड मैनुअली बाय द ऑपरेटर। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें हैंड व्हील्स लगे हुए हैं, तो आपको जब अपनी मशीन की एक्सिस को मूव करना होगा, यू हैव टू रोटेट दैट व्हील मैनुअली, और तब जाके आपका एक्सिस मूव होगा। बट सीएनसी मशीन में क्या रहता है कि जो भी डायमेंशन या जो भी डिस्टेंस, एक्सिस डिस्टेंस आप प्रोग्राम में दोगे, x 10 mm, y 10 mm, z 10 mm, आपका मशीन ऑटोमेटिकली उस कोऑर्डिनेट पे आ जाएगा। तो उससे क्या होता है, आपके पास अभी जो मैनुअल मशीन है उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत स्किल्ड पर्सन चाहिए, बिकॉज अगर उसको पता नहीं होगा कि हैंड व्हील को कितना मूवमेंट देना है, तो क्या होगा, आपके पास जो आपका जॉब है वो ओवरकट हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे आपके जॉब की एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए सीएनसी मशीन जहां आपको प्रिसाइज काम करना है, जहां आपको रिपीटिबिलिटी में काम करना है, वहां पे काम आती है। तो अभी डिस्कस करते हैं कन्वेंशनल मशीन और सीएनसी मशीन के डिफरेंस। तो सबसे पहले जो हमारे पास कन्वेंशनल मशीन रहता है ऑपरेटेड मैनुअली बाय द ऑपरेटर, और जो हमारे पास सीएनसी मशीन रहता है वो ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम, यूजेस हैंड व्हील्स, लीवर्स एंड डायल्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मेरे को कन्वेंशनल मशीन में कोई भी एक्सिस को मूव करना है तो मेरे को मैनुअली हैंड व्हील की मदद से एक्सिस को मूव करना पड़ेगा, जबकि सीएनसी मशीन में इट यूजेस सीएनसी कंट्रोल सिस्टम एंड सर्वो मोटर्स। तो जो हमारे पास सीएनसी मशीन रहता है उसमें सर्वो मोटर्स लगी होती है। तो जैसे ही आप एक्सिस मूवमेंट की कमांड देते हो तो सर्वो मोटर रोटेट होकर आपकी एक्सिस को मूव करती है। तो उससे क्या रहता है, जो आपकी एक्सिस मूवमेंट की जो फीड है वो यूनिफॉर्म रहती है, वो यूनिफॉर्म फीड से या यूनिफॉर्म स्पीड से आपके पास आपकी एक्सिस मूव करेगी। बट हैंड व्हील में क्या है, वो आपके हैंड की मूवमेंट पे डिपेंड करता है, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। हो सकता है कभी आप फास्ट घुमाओ, हो सकता है कभी आप स्लो घुमाओ, तो उस हिसाब से आपकी जो फीड है एक्सिस की या पोजिशनिंग फीड है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है। बट सीएनसी मशीन में हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्वो मोटर हम रोटेट करते हैं अपनी एक्सिस को, तो आपके पास जो फीड रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर सिंपल जॉब। तो अभी अगर आपको सिंपल जॉब काटनी है तो हम कन्वेंशनल मशीन का यूज कर सकते हैं। बट जैसा मैंने आपको बोला कि अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स जॉब काटनी है, किसी एंगल पे मशीनिंग करनी है, तो उस टाइम पे हम कन्वेंशनल मशीन का यूज नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पे हमको सीएनसी मशीन का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बिकॉज कि हमारे पास कितने टाइप का सीएनसी मशीन रहता है, मल्टी एक्सिस भी रहता है, 3 एक्सिस भी रहता है, एचएमसी भी है, वीएमसी भी है। तो अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट की मशीनिंग करनी है, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स सीएनसी मशीन। वो काम हम कन्वेंशनल मशीन पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लोअर एक्यूरेसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो मैनुअली ऑपरेट होती है तो इसमें हमारे पास जो रिपीटेबिलिटी और एक्यूरेसी है वो अच्छी नहीं आती है। बट सीएनसी मशीन में हमारे पास क्या है, हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है रिक्वायर्स हाई ऑपरेटर स्किल। तो जैसा मैंने आपको बोला कि कन्वेंशनल मशीन चलाने के लिए आपको ऑपरेटर के पास बहुत हाई स्किल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हैंड व्हील को कितना रोटेट करना है और कैसे रोटेट करना है। जबकि अगर हम बात करते हैं सीएनसी मशीन की, तो सीएनसी मशीन को चलाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए और आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है,
अगर हमको छोटे जॉब बनाने हैं, बैच प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए कन्वेंशनल मशीन ओके है, बट अगर हमको मास प्रोडक्शन करनी है रिपीटेबिलिटी के साथ, देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स सीएनसी मशीन। उसके बाद आता है कि जो हमारे पास कन्वेंशनल मशीन रहता है उसका इनिशियल कॉस्ट कम रहता है, सस्ती आती है, बट अगर हम सीएनसी की तरफ जाएं तो सीएनसी मशीन की इनिशियल कॉस्ट हाई रहती है, ठीक है, बिकॉज उसकी जो एक्यूरेसी है, रिपीटेबिलिटी है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मशीन। सो इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी बात आती है एप्लीकेशन की। तो हमने बहुत टाइप्स के सीएनसी मशीन पढ़े, अब वो सीएनसी मशीन कहाँ काम आते हैं, उनकी एप्लीकेशन कहाँ है इंडस्ट्री में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है डाई एंड मोल्ड। सो डाई एंड मोल्ड में क्या होता है, डाई और आपके पास जो मोल्ड है वो एक टूल रहता है जो आपके पास दूसरे जो आपके पास कंपोनेंट रहेंगे उनको प्रोड्यूस करने के काम आता है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो मोल्ड रहेगा अगर वो एक्यूरेट नहीं रहेगा, प्रिसाइज नहीं रहेगा, तो उससे जो पार्ट बन के निकलेंगे वो भी एक्यूरेट और प्रिसाइज नहीं रहेंगे। तो इसीलिए मोल्ड बनाने के लिए हमको बहुत ज्यादा प्रिसीजन, बहुत ज्यादा सरफेस फिनिश और उस जो हमारे पास मोल्ड है उसकी रिपीटेबिलिटी चाहिए रहती है। तो इसीलिए डाई एंड मोल्ड में सीएनसी मशीन का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो डाई एंड मोल्ड में भी हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें आता है इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग में हमारे पास क्या रहता है कि हम मोल्टन प्लास्टिक को मोल्ड के अंदर जो है वो इंजेक्ट करते हैं और हमारे पास फाइनल में प्रोडक्ट और पार्ट बन के निकलता है। प्रेस एंड डाइज में क्या रहता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाड़ी की बॉडी होती है वो सीट मेटल की बनी होती है। तो अगर हमको उस तरह के कंपोनेंट के ऊपर काम करना है तो क्या रहता है, उसके लिए भी आपके पास मोल्ड बनते हैं, एयर डाइज बनती हैं। तो अगर वैसी डाइज हमको बनानी है तो हमको सीएनसी मशीन के रिक्वायरमेंट है, सीएनसी मशीन के जरूरत लगेगी, ठीक है। फिर आता है कास्टिंग मोल्ड। कास्टिंग मोल्ड में आपके पास क्या है, मेटल कंपोनेंट बनते हैं, मतलब इंजेक्शन मोल्डिंग में आपके पास प्लास्टिक को मेल्ट करके डाला जाता है और कास्टिंग मोल्ड में आपके पास मेटल को मेल्ट करके डाला जाता है मोल्ड में, और आपके पास फाइनल कंपोनेंट बन के आता है। नेक्स्ट है फोर्जिंग डाई। जब आप किसी मटेरियल को रेड हॉट करते हो और उसके ऊपर हैमर से स्ट्राइक करते हो, पावर हैमर से, तो क्या होता है, जैसा आपका डाई रहेगा उस तरह की शेप ले लेता है, तो उसको बोलते हैं फॉर्जिंग डाइज। तो ये डिफरेंट तरह के इंडस्ट्री के सेक्टर्स हैं जहां पे सीएनसी मशीन यूज होता है। तो ये था हमारे पास डाई मोल्ड इंडस्ट्री। अब हम आते हैं पार्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या रहता है, एक तो मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्ट उससे टूल बना सकते हैं, मोल्ड। दूसरा क्या है, हम डायरेक्ट सीएनसी मशीन से पार्ट भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां पे हमको रिपीटेबिलिटी चाहिए रहती है, पार्ट्स में एक्यूरेसी चाहिए रहती है, वहां पर भी हम सीएनसी मशीन का यूज करते हैं। तो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सी इंडस्ट्री में होती है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज है जहां पे पार्ट मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सबसे पहले ऑटोमोटिव। तो आपके पास ऑटोमोबाइल के जितने भी पार्ट्स हैं, इंजन के पार्ट्स हैं, ट्रांसमिशन कंपोनेंट है, ब्रेकिंग सिस्टम है, वो सारे किसके ऊपर मशीन होते हैं, सीएनसी मशीन के ऊपर। नेक्स्ट एरोस्पेस। तो एरोस्पेस में जो भी आपकी टरबाइन ब्लेड्स रहती है, लैंडिंग गियर्स रहते हैं, लैंडिंग गियर्स के कंपोनेंट रहते हैं, और एरोस्पेस में जितने भी स्ट्रक्चरल पार्ट रहते हैं वो भी सीएनसी मशीन के ऊपर ही मशीन किए जाते हैं। मेडिकल में जितने भी आपके पास मेडिकल इम्प्लांट्स रहते हैं, नी इम्प्लांट हो, हिप इम्प्लांट हो, वो सारे कहाँ पे बनते हैं, सीएनसी मशीन के ऊपर, क्योंकि उनमें आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी, प्रिसीजन और बहुत अच्छी सरफेस फिनिश की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि आप सीएनसी मशीन के ऊपर ही अचीव कर सकते हो। देन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, जिसमें आपके पास बॉल्ब रहता है जो आपके पास गैस या आपके लिक्विड की फ्लो को कंट्रोल करता है। पंप कंपोनेंट, ठीक है, पंप के जो कंपोनेंट रहते हैं, इम्पेलर हो गए, ठीक है, उसको बनाने के, अगर उसको हमको बनाना है तो हमको सीएनसी मशीन का यूज लगता है, ठीक है। पाइपलाइन कनेक्टर हो गए। उसके बाद इंडस्ट्रियल मशीनरी, गियर हाउसिंग, शाफ्ट, वीयरिंग होल्डर्स, जितने भी हमारे पास ये कंपोनेंट रहते हैं, गियर बॉक्स हो गया, वो सब किस पे बनते हैं, सीएनसी मशीन के ऊपर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, हीट सिंक, एनक्लोजर, कनेक्टर। तो हीट सिंक बेसिकली क्या करता है, जो जब आपके पास किसी भी आप गाड़ी का इंजन ले लो या कोई भी ऐसा कंपोनेंट ले लो जिसमें आपके पास हीट से एनर्जी
प्रोड्यूस की जा रही है, तो क्या होता है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए, कूलिंग इफेक्ट के लिए आपके पास हीट सिंक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे हीट सिंक अगर आपको बनाने हैं, एनक्लोजर बनाने हैं, कनेक्टर बनाने हैं, तो आपके पास सीएनसी मशीन का होना जरूरी है। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज है जहां पे पार्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और सीएनसी मशीन का यूज होता है। तो अब बारी आती है एडवांटेजेस ऑफ सीएनसी मशीन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में भी, जब हमने डिफरेंस डिस्कस किया कन्वेंशनल मशीन और सीएनसी मशीन का, तब भी हमने डिस्कस किया कि सीएनसी मशीन क्यों फायदेमंद है। तो अब हम देखेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ सीएनसी मशीन। सो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो आपके पास जितने भी कंपोनेंट सीएनसी में बनेंगे वो प्रिसाइज बनेंगे, एक्यूरेट बनेंगे। ठीक है, दूसरा आता है एफिशिएंसी एंड स्पीड। सो एफिशिएंसी बेसिकली क्या रहता है आपके पास, कि आपने कितना इनपुट किया और आपके पास आउटपुट कितना मिल रहा है। ठीक है, एंड स्पीड। अब आपने देखा कि हमारे पास, जब हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन, तो आपने देखा कि हमारे पास मल्टीपल टूल्स थे जो कि एटीसी में लगे हुए थे, और विद द हेल्प ऑफ एटीसी हम क्या कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू आवर ऑपरेशन हम टूल चेंज कर रहे थे। तो उससे क्या था, हमारा जो मशीनिंग प्रोसेस था, जो हमारा सेटअप टाइम था, वो डिक्रीज हो जा रहा था, और हमारी प्रोडक्शन की जो स्पीड थी वो बढ़ जा रही थी। ठीक है, तो जितना हम इनपुट दे रहे थे उतना हमको आउटपुट मिल जा रहा था विदाउट इफेक्टिंग द साइकिल टाइम। तो उससे क्या था, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही थी। तो सीएनसी मशीन में ऐसे बहुत से ऑपरेशन है जो ऑटोमाइज रहते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो उस वजह से हमारे पास क्या है, सीएनसी मशीन में मशीनिंग की स्पीड भी बढ़ती है और हमको सीएनसी मशीन हाई एफिशिएंसी भी देती है। थर्ड है कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेबिलिटी। तो अगर आपको एक ही डायमेंशन के मल्टीपल पार्ट्स बनाने हैं किसी टाइट टॉलरेंसेस में, तो आपके पास उस काम को सीएनसी मशीन ही कर सकती है। वो काम आप कन्वेंशनल मशीन में नहीं कर सकते हैं, अगर आपको मल्टीपल टाइम सेम डायमेंशन के पार्ट प्रोड्यूस करने हैं। तो ठीक है, तो थर्ड एडवांटेजेस आपका क्या हो गया, कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेबिलिटी। फोर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोमेशन। तो जब हम सीएनसी टर्निंग का वीडियो देख रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि हमने रोबोट को मशीन के साथ इंटीग्रेट कर रखा था, जो क्या कर रहा था, हमारे पास हमको मशीन के अंदर हमारे कंपोनेंट का सेटअप करके दे रहा था। तो जो हमारे पास सीएनसी मशीन रहता है वो फ्लेक्सिबल रहती है और उसमें हम किसी भी टाइप का ऑटोमेशन कर सकते हैं, जबकि मैनुअल मशीन में हम ऑटोमेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो मैनुअली ऑपरेट होती है। तो अगर आपके पास जो रोबोट रहेगा वो अगर कुछ इनपुट देगा मशीन को, तो मशीन रीड नहीं कर पाएगा, जिसके कारण आपका जो ऑटोमेशन का जो पूरा सिस्टम है वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन सिस्टम में ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस करना है, देन यू हैव टू सिलेक्ट और यू हैव टू गो विद द सीएनसी मशीन। तो ये थे हमारे पास सीएनसी मशीन के एडवांटेजेस। अब आता है कि सीएनसी मशीन के बारे में सीख के या सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग सीख के मैं कौन कौन से जॉब रोल्स के लिए अप्लीकेबल हूँ, मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ इंडस्ट्री में जाके। जब मैं डिस्कस कर रहा था कि सीएनसी मशीन कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज होती है, तो आपने देखा बहुत सारी डाई एंड मोल्ड इंडस्ट्रीज, मेडिकल इंडस्ट्रीज, ऑटोमेशन, एरोस्पेस। सो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें सीएनसी मशीन यूज होता है। अब उन सब इंडस्ट्री में अगर आपको सीएनसी मशीन के बारे में नॉलेज है तो आप कौन कौन से जॉब रोल कर सकते हो, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है सीएनसी ऑपरेटर। तो सीएनसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए, उसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए, उसमें सेटअप करने के लिए हमको क्या है, सीएनसी ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, जो मशीन में प्रोग्राम को इनपुट करता है, टूल्स को मशीन में लोड करता है, आपके पास जो वर्क पीस रहता है उसका ऑफसेट वगैरह सेट करता है। तो वो जो काम रहता है वो सीएनसी ऑपरेटर का रहता है। तो सीएनसी ऑपरेटर, जहां पे आपके पास सीएनसी मशीन रहेगा आपको सीएनसी ऑपरेटर की जरूरत लगेगी। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हमने डिस्कस की पहले वाली स्लाइड में, उन सब इंडस्ट्रीज में सीएनसी ऑपरेटर की जरूरत लगती है। तो सीएनसी का बारे में सीख के या सीएनसी के बारे में नॉलेज गेन करके आपका जो सबसे पहला जॉब रोल है वो है सीएनसी ऑपरेटर। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर। सो इंडस्ट्री में आपके पास जितनी भी प्रोसेस होगी मैन्युफैक्चरिंग को
मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो उस प्रोसेस के बारे में आप कैसे, आपको कैसे नॉलेज होगा? आप जब मान लो सीएनसी मशीन के ऊपर आप अगर आप कोई ऑपरेशन, अगर आप कोई कंपोनेंट मशीन कर रहे हो, तो उस कंपोनेंट को मशीन करने के लिए आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस रहती हैं, ठीक है? तो उन प्रोसेसेस को डिफाइन करने के लिए आपके पास, आपको सीएनसी का नॉलेज होना चाहिए पहले, उसके बाद ही आप उसकी प्रोसेसेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो दूसरा रोल आ जाता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर, तीसरा आ जाता है सीएनसी टेक्नीशियन। अगर सीएनसी मशीन में कोई आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कुछ ट्रबल शूट करना हो, तो आप सीएनसी टेक एज ए सीएनसी टेक्नीशियन भी काम कर सकते हैं। फिर आता है सर्विस इंजीनियर। अगर आपको सीएनसी मशीन को इंस्टॉल करना है, उसके किसी पार्ट को रिप्लेस करना है, सीएनसी मशीन में कोई ब्रेक डाउन हुआ है, उस ब्रेक डाउन को ठीक करना है, या उसको उसके किसी पार्ट को रिप्लेस करना है, तो वो काम रहता है सर्विस इंजीनियर का। तो वो काम करने के लिए पहले आपको सीएनसी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप काम कर पाओगे। तो अगला रोल हमारे पास आता है सर्विस इंजीनियर का। फिर आता है एप्लीकेशन इंजीनियर का। तो एप्लीकेशन इंजीनियर का काम बेसिकली रहता है कि जितने भी आपके पास मशीन में ऑटोमेशन से रिलेटेड, मशीन में एक्यूरेसी से रिलेटेड, जितने भी आपको प्रूविंग, मशीन को प्रूव करने के जितने भी टास्क रहते हैं, वो सारा एप्लीकेशन इंजीनियर करके देता है। मशीन की एक्यूरेसी से रिलेटेड अगर आपको कस्टमर बोलता है कि मेरे को मशीन की एक्यूरेसी प्रूव करके दिखाओ, तो वो काम एप्लीकेशन इंजीनियर करके देता है, ठीक है? इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर, अगर आपको सीएनसी के बारे में ट्रेनिंग देनी है, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अगर आपको पढ़ाना है, सीएनसी के कोर्स को लॉन्च करके आपको सीएनसी के बारे में ट्रेनिंग देनी है, सीएनसी की प्रोग्रामिंग सिखानी है, तो आप एज अ इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर भी काम कर सकते हैं। फिर आता है सीएनसी प्रोग्रामर। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सीएनसी मशीन को रन करने के लिए हमको प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम बनाने के लिए भी हमको प्रोग्रामर चाहिए रहता है, ठीक है? तो अगर आपको सीएनसी के बारे में नॉलेज है, तो आप सीएनसी एज अ सीएनसी प्रोग्रामर भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर सीएनसी इंजीनियर, जो सीएनसी के ऑटोमेशन से रिलेटेड जितने भी आपके पास ऑपरेशन रहता है, उसकी टेक केयर करता है। सुपरवाइजर, जो सीएनसी ऑपरेटर का सुपरविजन करता है, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो उनको गाइड करता है। तो आप एज अ सुपरवाइजर भी इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सीएनसी का नॉलेज है। देन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, आप मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर भी इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिफाइन करना रहता है। कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपके पास कब परफॉर्म करनी है, उस सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। सो ये था हमारे पास आज का सेशन। सो अब we'll discuss about your questions, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। ओवर टू यू मैम। So we have our first question. Sagat had asked about कौन सी jobs available है. So I believe sir has already answered कि कौन सी job role में आप जा सकते हो CNC. But if Sagat, if you still have any question, please do drop it in the chat box. So our next question was CNC sheet metal bending. Please explain about it by Love Kush. ओके, सो सीएनसी बेंडिंग मशीन में क्या रहता है? सीएनसी बेंड, जो आपके पास बेंडिंग मशीन है, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन। बट जो मशीन, जो सीएनसी बेंडिंग मशीन में जो टूल लगते हैं, जैसा मैंने आपको बोला, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि डाई है, ठीक है? तो जो मशीन, सीएनसी मशीन में बेंडिंग टूल्स लगेंगे जो हेल्प करते हैं सीट मेटल को बेंड करने में, वो टूल आपके पास सीएनसी मशीन में बनते हैं। तो जो आपके पास सीएनसी जो बेंडिंग मशीन है, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन। जो आपकी बेंडिंग मशीन में जो भी अभी बेंडिंग मशीन में क्या रहता है कि जिस शेप में आपको सीट को बेंड करना है, उस शेप का आपको कोर या कैविटी चाहिए। बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो उस सीट को आपको जिस शेप या जिस डिजाइन में बेंड करना है, उस डिजाइन का या तो आपको कोर चाहिए रहेगा या कोर और कैविटी चाहिए रहेगा। तो जो कोर और कैविटी बनता है, वो बनता है सीएनसी मशीन में। तो सीएनसी मशीन में बनने के बाद वो आपके पास वो इंस्टॉल किया जाता है बेंडिंग मशीन में।
तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आपके पास जो बेंडिंग मशीन में सीट जाता है और ऊपर से वो प्रेस मशीन उसको प्रेस करती है सीट को, तो जिस शेप का आपके पास कोर कैविटी रहेगा उस शेप में आपके पास वो सीट मेटल आपका बेंड हो जाएगा। आई Okay, होप so मैंने लबकुश के क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। इफ अगर लबकुश आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो तो आप बता सकते हो, नहीं तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द अदर वे। okay, so this is an interesting question, and it has already been answered in the chat box by Ritik, but I'll still mention it here. As the full form is computer numeric control, is there any relation with numbers? Yeah, as I told you, there is always relation with alphabets and numbers. I told you computer generated alphanumeric codes. So alphanumeric means alphabets and numbers. So let us consider, you have seen in the video, we have lot of tools in our ATC, which we need to perform multiple operation. तो अभी मान लो मेरे पास 10 टूल है ATC में लगे हुए, अभी मेरे को जरूरत पड़ती है 9 नंबर टूल की. So how I will call? That time I have to use alphabet plus number. So alphabet में मैं क्या करूंगा, T means टूल नंबर टूल, और न्यूमेरिक में मैं जो नंबर डालूंगा वो टूल नंबर मशीन रीड करेगी. तो मान लो मेरे को 9 नंबर टूल बुलाना है, तो मैं क्या करूंगा, T9 M06 आपके पास रहता है टूल चेंज कमांड. तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका 9 नंबर टूल स्पिंडल में आ जाएगा. So that's why we need alphabet plus numeric. Both are important in CNC programming. अगर आपको मशीन को मूव भी करना होगा उसके लिए भी आपको न्यूमेरिक की जरूरत पड़ेगी. जैसे G01 अगर मैं देता हूं तो मशीन लीनियर फीड में जाता है. अगर मैं G00 देता हूं तो मशीन रैपिड फीड में जाता है और पोजिशनिंग फीड में जाता है. तो इसमें आपके पास जितने इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट आपके पास अल्फाबेट्स हैं. सो दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है आपके पास सीएनसी प्रोग्रामिंग में. I believe this was a very elaborated answer sir gave you all. I also believe Anup has an opinion, which all of you all might have read, that he thinks we need experts for conventional machines and work totally depends upon the person who does it. But with CNC, anyone who knows how to operate can do the job. So Sorry, I didn't get this question. We need expert for conventional machine Anup and says, for conventional machine के लिए एक particular expert लगता है, and the output of the work depends on that person. But for CNC, for I think the automated one, anyone who knows how to operate the system can do it. It does not depend on a particular person. यस. सो जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारे पास कन्वेंशनल मशीन रहता है उसके लिए डेफिनेटली हमको एक्सपर्ट लगता है. एक्सपर्ट हु इज हैविंग स्किल इन हिज हैंड. तो जैसा मैंने आपको बोला, जिसको हाथ से काम करना आता है वही एक्यूरेटली काम कर सकता है आपके पास कन्वेंशनल मशीन के ऊपर, बिकॉज दैट मशीन इज टोटली डिपेंडेबल ऑन ह्यूमन. वो पूरी तरह से ह्यूमन के ऊपर डिपेंड है. अगर आपको एक्सिस मूव करना होगी आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा. आपको टूल चेंज करना होगा आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा. सो अगर आपको उस केस में अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप कन्वेंशनल मशीन यूज नहीं कर सकते हो, आप कन्वेंशनल मशीन ऑपरेट नहीं कर सकते हो. बट अगर मैं बात करूं सीएनसी मशीन की, तो सीएनसी मशीन में अगर जैसा मैंने डिस्कस किया कि हमको क्या रहता है, बेसिकली कोडिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और टेक्निकल चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्क है वो मशीन आपके पास ऑटोमेटिकली कर देती है. आपको उस केस में मैनुअली या हैंड्स ऑन एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैनुअली मशीन को मूव नहीं करना है. आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा टेक्निकल स्किल में, और जो आपके पास प्रोग्रामिंग है और प्रोसेस को कैसे डिफाइन करते हैं, जॉब का सेटअप कैसे करते हैं, उस चीज में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा सीएनसी में
काम करने के लिए। बट अगर आप मैनुअली मशीन पे जाओगे तो उसमें आपको हर एक चीज, छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने हैंड व्हील को थोड़ा एक्स्ट्रा मूवमेंट दे दिया तो आपके पास आपका जो जॉब है वो खराब हो जाएगा, उसकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। सेम आपके पास होगा फीड में। अभी सीएनसी मशीन में क्या रहता है, कांस्टेंट फीड रहता है, जैसा मैंने आपको बताया अभी, द हेल्प ऑफ सर्वो मोटर। बट जब आप काम करते हो कन्वेंशनल मशीन के ऊपर, तो जो मशीन का फीड है वो डिपेंडेंट रहता है आपके हाथ के ऊपर। अब मान लो फीड देते देते अगर आपके हाथ में फटीक आ जाता है, आप थक जाता है, आपके हाथ में दर्द होता है, तो आपका क्या, हाथ स्लो काम करना चालू कर देगा, तो आपका फीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जिससे क्या है आपकी जो जॉब की एक्यूरेसी या सरफेस फिनिश है वो खराब हो जाएगी। बट सीएनसी मशीन में ऐसा नहीं है, आपने कमांड दे दिया फीड का कि मेरे को इस फीड से चलना है, तो आपका मशीन उसी फीड में काम करेगा। Amrit has a question. He asked how to identify different axes on different CNC machine visually. सो देयर इज अ थंब रूल। जब आप मशीन के सामने खड़े होते हो तो देयर इज लेफ्ट हैंड थंब रूल लाइक दिस। तो जब आप मशीन के सामने खड़े होते हो तो आपको अपने हाथ का ऐसे रखना है, तो ये जो एक्सिस रहता है वो एक्स एक्सिस रहता है। सो जिस तरफ ये डायरेक्शन कर रहा है वो पॉजिटिव एक्सिस रहेगा आपके पास। सो एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। और इसके अपोजिट जब आप देखते हो तो ये आपके पास वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव एंड नीचे को जेड नेगेटिव। तो आपको मशीन के सामने खड़े होके ऑब्जर्व करना है और हमेशा स्पिंडल के मूवमेंट को देखना है। Then you can easily find out like which axis is having which movement, like X positive, X negative, Y positive, Y negative, Z positive, Z negative. Okay. So cutter compensation ka explanation they want to know. Gautam wants to know. Cutter Okay, compensation. Explain. who is asking this question? Gautam. Okay, see, cutter compensation is basically G41 and G42. सो क्या होता है कि जब आप मशीन पे कटर लोड करते हो तो जो आपका कटर मूवमेंट करता है वो सेंटर से करता है, कटर के डायमीटर के सेंटर से। सो लेट अस कंसीडर अगर मेरे को 10x10 का साइज बनाना है और मैं विदाउट कंपनसेशन बनाता हूँ और मेरे पास मान लो मैं 4 का एंड मिल यूज कर रहा हूँ, तो मेरा टूल सेंटर से चलेगा। सेंटर से चलने का मतलब है कि 2 mm उस तरफ, 2 mm इस तरफ, टोटल 4 mm डायमीटर है। तो जब मैं उसको काटूंगा तो मेरा वो 2 mm एक्स्ट्रा काट देगा, विदाउट कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ। जब मैं विदाउट कंपनसेशन प्रोग्रामिंग करूंगा तो वो 2 mm इस तरफ से एक्स्ट्रा काट देगा, जब ऊपर जाएगा तो 2 mm ऊपर से एक्स्ट्रा काट देगा, तो टोटल 4 mm आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल कट जाएगा। तो आपका डायमेंशन कितना आएगा, 6 mm। तो वो तो गलत हो गया, बिकॉज हमको तो 10 mm चाहिए था। तो जब आप कंपनसेशन देते हो G41, G42, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सा कंपनसेशन यूज करना है। ठीक है, तो क्या होता है, जो आपका कटर होता है, अगर मैं 41 उसको देता हूं तो वो सेंटर से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। उसको अगर 42 देता हूं तो वो सेंटर से राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, जिससे क्या है आपके पास जो आपको एक्चुअल डायमेंशन अचीव करने होंगे वो आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि जो आपकी जो कटिंग है वो बाहर से हो रही है, शिफ्ट होके हो रही है, तो आपके पास जो भी कंपोनेंट कटेगा वो डायमेंशनली एक्यूरेट कटेगा। तो कटर कंपनसेशन आपकी वहां पे यूज होती है, G41, G42, और आपको साथ में डी देना पड़ता है डायमीटर ऑफसेट में, D1, D2, D3, और जो भी वैल्यू आपकी डायमीटर में रहेगी ऑफसेट में वो वहां से उठा के उतना शिफ्ट हो जाता है। Okay, thank you so much, sir. So, Sagat only had this one question I will try to address, which is job join करने के लिए direct internship मिलती है या पहले training लेनी होगी? So, I feel more पहले आपको training लेनी होती है, फिर interview होता है, and on that basis, आपको job लगती है. I hope, Sagat, this is clear. Amrit has one more question, that is, without programming knowledge, start the job. Can they start the job as a CNC operator? या सो सीएनसी में सबसे बेसिक जो जॉब आती है सबसे पहले इनिशियली, वो आपके पास सीएनसी ऑपरेटर की रहती है। सो सीएनसी ऑपरेटर के लिए आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना उतना जरूरी नहीं है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग का होना जरूरी नहीं है, बिकॉज जो ऑपरेटर का काम रहता है वो
प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना रहता है। प्रोग्रामर प्रोग्राम बना के दे देता है, आपको उसको मशीन में डाल के एग्जीक्यूट करना रहता है और आपको जॉब का सेटअप करना रहता है। तो बेसिक जो ऑपरेटर का काम रहता है इंडस्ट्री में वो इतना ही रहता है कि उसको जॉब का सेटअप करना है, टूल का सेटअप करना है और जो प्रोग्रामर उसको देगा उसको मशीन पे एग्जीक्यूट करना है। तो डेफिनेटली अगर आपको उतना हाई लेवल प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, सो यू कैन स्टार्ट योर जॉब एज अ सीएनसी ऑपरेटर और लेटर जो है आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो उसके साथ साथ, बिकॉज जब आप काम करोगे तो आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज भी होने लग जाएगा, देन यू कैन बी सीएनसी प्रोग्रामर आल्सो। Arjun, your question is a bit unclear. Do you have this as a different question? Like, what about BTech student? I think he is asking about like if I have done the BTech, so what kind of job role will I get? Maybe. Am I saying right, Arjun? क्या मैं सही बोल रहा हूँ अर्जुन कि आपका क्वेश्चन यही है कि सर बीटेक? हाँ, यस। तो एज अ बीटेक देयर इज लाइक आई कैन से कि आप एज अ कैड कैम इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हो। सो कैड कैम में बेसिकली क्या रहता है, यू हैव टू डिजाइन एंड डिजाइन करने के बाद यू हैव टू जनरेट इट्स प्रोग्राम कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो उसके बाद क्या रहता है कि डिजाइन के बाद आपको कैम प्रोग्रामिंग करना रहती है। जैसा मैंने बोला कि कैम प्रोग्रामर प्रोग्राम बना के दे देता है जो ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करना होता है। तो आप एज अ सीएनसी प्रोग्रामर और एज अ सीएनसी एप्लीकेशन इंजीनियर आप ज्वाइन कर सकते हो एज अ बीटेक स्टूडेंट। Okay, thank you so much, Naveen sir. That's all for our Q&A. To all the participants, we have been, electric vehicle has been trending given the price of petrol and oil and everything rising up. Every one of them want to know more about EV. And how does EV work? It works with the help of EV batteries. So I am glad to announce that our next session in June month is about EV battery. The details about it, you can register from given link. And I've also shared a feedback form. Please fill the feedback form. We will be sharing the certificates soon with you all and enroll into for our next webinar, which is EV battery. So, and on that note, we come to the end of the session. First and foremost, a huge thank you to our incredible speaker, Mr. Naveen Kumar, for sharing such practical, real-world insights and the depth of knowledge, passions, the videos collected, and the explanation of videos. It really helped, I think, the participants. And a very big thank you to our participants for showing up, engaging so actively, constantly. Each one of you all had great questions, which made the session so lively. You were curious, motivated, and wanted to learn. So if you are into, if you want to know what Tata AI want to enroll into NST, please do visit our website, register. You can also connect, drop your queries on mail or call us on the numbers. And watch out for our next webinar. That's it. Thank you so much. Thank you everyone for joining this session and having a discussion with us. Thank you so much. Bye. Yes, Gautam, we will surely arrange a welding session soon. Please join our WhatsApp community and keep an eye on our upcoming webinars. Thank you so much, everyone.